So far we have finished one session for chapter 6, and the chapter is about cost. Actually we are dealing with third unit, which is about producers, behavior and supply. In this unit we will be discussing about the topics related to the producer. So chapter 5 we have already done, which is about production. The chapter which we are discussing is about cost. Now we have finished one session for this chapter. Now let's revise the topics that we have seen in our first session. Now सबसे पहले हमने बात की थी फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स. इनपुट्स क्या हैं? आउटपुट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए दे आर कंसिडर्ड एज इनपुट्स. अब फैक्टर इनपुट्स में जो है इनपुट्स वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटी will be termed as non-factor inputs. Then we have seen different concepts related to the production of cost, wherein we have seen 5 different concepts. Real cost. It is the sacrifice made, mental and physical, by the person to carry out the production activity, and it cannot be measured in terms of money. Second, हमने social cost के बारे में देखा था. It is the cost which the society has to bear on account of the production activity. Third, implicit cost. Implicit cost and explicit cost opposite हैं एक दूसरे के. अब implicit cost मतलब self owned and self employed resources. मैं अपने खुद के रिसोर्स यूज़ करता हूँ. I am myself employed in the work. So इसमें मुझे कोई आउटसाइडर को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जैसे कि रेंट ऑन माई ओन लैंड. I'm not supposed to pay to anyone because the land belongs to me. Explicit cost में क्या है? मैंने लैंड किसी से रेंट पे लिया है. I have to pay him. I have to pay the money to the outsider. That is explicit cost. मैंने बैंक से लोन लिया है तो वहाँ मुझे इंटरेस्ट पे करना है. That is explicit cost. लेकिन मैंने अगर खुद का पैसा वहाँ यूज़ किया है then that is implicit cost. Okay. And next term that we have discussed in the concept of cost was about opportunity cost. Opportunity cost हम chapter 1 में भी देख चुके थे. That is the value of factor in its next best alternative. So these are the different 5 types of cost which we have seen. Now the next topic that which we have discussed was about the concepts related to the cost. 3 concepts cost से related हैं: total cost, average cost and marginal cost. अब टोटल कॉस्ट में अगेन देर आर 2 सब कैटेगरीज: टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तक का टॉपिक जो हमने लास्ट सेशन में देखा था. अब देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है. ये ऐसे कॉस्ट हैं जो डजेंट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट. इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इफ यू डिक्रीज द प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन इज नॉट देयर एट ऑल, स्टिल दीज आर द कॉस्ट जो रहेंगे ही बिजनेस में. जैसे कि रेंट of the warehouse. If you have not used the warehouse for 10 days or 15 days or for 3 or 4 days, still you have to pay the rent for the whole month. That is fixed cost for the business. Installment जो आपको बैंक में पे करना है, that is also fixed cost. Fixed cost का जो टेबल है एंड कर्व है वो कुछ इस तरह है. देखिए ये टेबल है. Fixed cost remain fixed even if the production is increasing, decreasing or it remains zero. See, it is 20 in all the cases. तो इसका कर्व कैसा रहता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देन है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में. वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होते हैं विद द चेंज इन द आउटपुट. अगर आउटपुट चेंज होगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गए. दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन अवर अर्लियर क्लास. ओके, बट द चेंज इन द आउटपुट, बट द चेंज इन द कॉस्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन द वे इट इंक्रीजेस दैट इज इंपॉर्टेंट. सी ये शॉर्ट रन है. एक्सप्लेनेशन टॉपिक का जो है वो शॉर्ट रन के व्यू पॉइंट से है, जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही ऐड कर सकते हैं. फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है. ओके, सो द वे द कॉस्ट इंक्रीजेस इज डिफरेंट हियर, दैट विच वी हैव डिस्कस इन अवर अर्लियर सेशन. इनिशियली द कॉस्ट इंक्रीजेस हियर at falling rate, then it increases at constant rate, then it increases at increasing rate. Okay, so that you need to keep in your mind here. Okay.
Okay, now let's start our today's session with the total fixed cost and variable cost दोनों को साथ में रखते हुए. अब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम प्लस करते हैं वी गेट टोटल कॉस्ट. ओके, अब टोटल फिक्स कॉस्ट जैसे हमने अभी देखा, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द डिफरेंट आउटपुट लेवल. अगर आपका आउटपुट 0 है या 1 है या 2 है या 8 तक है यहाँ पे टेबल में, सी द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द आउटपुट्स. इट इज 20 इन ईच केस. अब वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी जस्ट देखा कि वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज होता है इनिशियली, इट इंक्रीजेस एट फॉलिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. आप बीच में देख सकते हो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में, थर्ड टू फोर्थ में कितना इंक्रीज हुआ है 4, एंड 4 to 5 में कितना इंक्रीज हुआ है अगेन 4. सो इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? टोटल कॉस्ट मिलेगा. ओके, अब दोनों का कर्व हम देखते हैं कैसा होगा. टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता है. वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ओके, एंड जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो स्टार्ट होगा जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है, वहां से ही स्टार्ट होता है. बिकॉज टोटल कॉस्ट देखिए आप टेबल में, जब आउटपुट 0 है तब टोटल कॉस्ट पॉजिटिव रहता है, दैट इज 20. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 20. एंड एज द वेरिएबल कॉस्ट मूव होता है वैसे ही वो टोटल कॉस्ट भी मूव होता है. एंड एक और चीज़, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस देखो, इट रिमेन्स सेम. बिकॉज दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो फिक्स कॉस्ट ही तो है. फिक्स कॉस्ट कितना है? 20. तो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो भी 20 ही रहता है. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द कर्व हियर प्रॉपरली विथ प्रॉपर मेजरमेंट्स, देन ओनली यू कैन गेट द कर्व है जो पहले इनवर्स एस शेप है, वही कर्व आपको मिलना चाहिए. Okay, now let's see the explanation of this topic. See, total cost can never be 0. Okay, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हुए. सो टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज जब आउटपुट 0 होता है तब टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ न कुछ तो होता ही है. वेरिएबल कॉस्ट इट्स ओके, वो 0 रहता है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो कुछ न कुछ रहता ही है. सो उन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिलता है. सो इट कैन नेवर बिकम 0. अब as the output increases, total cost also increases, because variable cost increase हो रहा है तो ये भी increase होगा ही. Next, third point, total cost and total variable cost जो हैं वो parallel रहते हैं दोनों एक दूसरे के. They do not meet each other, they both are parallel, because दोनों के बीच का जो difference है वो कितना है? total fixed cost का difference है. Next, अब curve के बारे में बात करते हैं. total fixed cost का जो curve है वो रहता है पैरेलल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, एंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल का जो कॉस्ट है इट इज इनवर्स एस शेप जैसा है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, लेट्स सी. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. मीनिंग में टोटल फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट. अगर आउटपुट में चेंज होता है, आउटपुट 0 भी होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, इट रिमेन्स एज इट इज. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट. अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो तो ये इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट कम करते हो तो ये डिक्रीज होगा, अगर आउटपुट 0 होता है तो ये 0 होगा. नंबर 2, फैक्टर्स. दीज आर द पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स कॉस्ट जो है वो हम पे करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो हम किसको पे करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स को पे करते हैं. दोनों में पेमेंट तो होता ही है. इन द फर्स्ट वन फिक्स कॉस्ट में हम फिक्स फैक्टर्स को पे करते हैं, सेकेंड में हम वेरिएबल फैक्टर्स को पे करते हैं. अब थर्ड पॉइंट है, जब आउटपुट 0 होता है तब की बात है. देखो, जब आउटपुट 0 होता है ना तो फिक्स कॉस्ट है वो पॉजिटिव रहता है. दिस कॉस्ट ऑकर्स व्हेन द आउटपुट इज 0. आउटपुट अगर 0 है तो भी ये कॉस्ट रहता है. एंड वेयर एज इन द वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द आउटपुट इज 0 देयर इज नो कॉस्ट. टाइम डायमेंशन. फिक्स कॉस्ट जो है वो शॉर्ट पीरियड में एग्जिस्ट करता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड के लिए है. अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यह भी हमने कर्व में देखा था. फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो इनवर्स एस शेप्ड है एंड ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ऑल्टरनेट नेम. फिक्स कॉस्ट को हम
सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, एंड वेर एज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द आउटपुट। बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है? बिजनेस में कंटिन्यू इवन इफ दिस कॉस्ट आर नॉट कवर्ड इन शॉर्ट रन। से शॉर्ट रन की बात है, शॉर्ट रन में अगर फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होता है देन इट्स ओके, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होना ही चाहिए। बिजनेस में नॉट कंटिन्यू अगर आपके वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होते हैं तो एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो रहना ही है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना ही है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आना ही है। ओके, एंड वेजेस टू द लेबरर्स, एक्साइज ड्यूटी, ये जितना आउटपुट होता है उस हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट वर्क होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट। हमने देखो टोटल कॉस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो ओवर कर लिए हैं। ओके, से एक्चुअली जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था 3 कॉस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द 3 कॉन्सेप्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द कॉस्ट टॉपिक। द फर्स्ट कॉस्ट अबाउट द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बारे में हमने देख लिया, टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट। अब ये सिंपल है, देखो एवरेज कैसे मिलता है? जितना भी कॉस्ट है उसको अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर लेते हो तो आपको मिलता है एवरेज कॉस्ट, सीधा एवरेज कॉस्ट। वंस अगेन ये शॉर्ट रन के बारे में ही है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन इज द पर यूनिट कॉस्ट। ओके, ये कैसे मिलता है? एवरेज कॉस्ट आपको कैसे मिलता है? बाय डिवाइडिंग इट विद द आउटपुट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करोगे तो भी आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा। ओके, सो 2 formulas here you need to go for or understand. Okay, the first is total cost divided by Q, that is output, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उनको अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर लेते हो तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। तो उन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट। ओके, अब नाउ वी विल लुक अबाउट एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है, एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट हमें मिलता है। विल टॉक अबाउट दैट। सी एवरीवन, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी के साथ। ओके, तो ये अभी हमने देखा था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कैसा होता है, इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द आउटपुट्स, वेदर द आउटपुट इंक्रीजेस और द आउटपुट डिक्रीजेस और आउटपुट रिमेन्स जीरो, द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन दैट फिक्स कॉस्ट। देखिए ये टेबल से आपको पता चलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 20 है इन ईच केस। देखो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 1 से लेकर 8 तक, बट द टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहता है 20 इन ईच केस। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? व्हेन यू डिवाइड टोटल फिक्स कॉस्ट विद द क्वांटिटी, से 20 डिवाइड बाय 1 इट इज 20, 20 डिवाइड बाय 2 इट्स 10, देन डिवाइड बाय 3 इट्स 6.6, ओके, देन डिवाइड बाय 4, 5, 6 एंड सिमिलरली 8 तक जाना है। तो ऑब्जर्व द what you call vertical table of average fixed cost. You observe, see it is going on decreasing, 20, 10, 6.65, 4, it is decreasing. तो इसका कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। ओके, देखो ये फिगर 6.4 में कर्व भी दिया हुआ है, ये जो कर्व है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ओके, सी द कर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग 2.5 तक ये फॉल होता रहा है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो फॉल होता जा रहा है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फॉल होता जा रहा है, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा बिकॉज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट 20 तो रहेगा ही ना। आउटपुट आप 8 से लेके 10 तक जाओ, 15 तक जाओ, 20 तक जाओ या 40 तक जाओ या कितना भी जाओ, ओके, 20 फिक्स कॉस्ट तो रहने ही वाला है एंड 20 डिवाइड बाय आउटपुट कर लो तो कुछ ना कुछ तो आंसर आने ही वाला है, वो जीरो होगा ही नहीं। दैट इज वाई इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो आप समझिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये जो कर्व है अभी आपने देखा एवरेज फिक्स कॉस्ट का, उसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कह सकते हो बिकॉज द एरिया रिमेन्स सेम। एरिया रिमेन्स सेम का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ देखिए एरिया मतलब मानो ये कितना है 10 यहाँ पे, तो 10 इंटू दिस 2, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ किसका क्या हुआ है 10 and 2, तो एरिया 20 हुआ। सिमिलरली
4 यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो 4 and 5 होगा, ओके इट इज़ हियर 5, तो वो भी 20 ही रहेगा। इफ आई से 20 एंड दिस इज 1, ओके, तो वो भी एरिया सेम ही रहता है, ओके, एरिया रिमेन्स सेम, दैट इज 20 इन ईच केस, बिकॉज आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 20 इन ईच केस, ओके, सो दैट इज एरिया रिमेन्स सेम, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेरिएबल कोस्ट। वैसे ही जैसे फिक्स कोस्ट के बारे में था, वैसे ही एवरेज वेरिएबल कोस्ट के बारे में है। एवरेज वेरिएबल कोस्ट कैसे मिलेगा, बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट विथ क्वांटिटी, ओके, सो इट इज पर यूनिट वेरिएबल कोस्ट, इट रिफर्स टू रेशियो ऑफ टोटल वेरिएबल कोस्ट टू टोटल आउटपुट, ओके, सो कैसे मिलेगा ये, TVC अपॉन Q, ओके। नाउ लेट्स सी द टेबल एंड कर्व ऑफ दिस टॉपिक। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने आगे देखा था कैसे मिला, हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में, ओके। वंस अगेन मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको बता दूं, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज ही होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात है, इट इज इंक्रीजिंग ओनली, लेकिन इसमें जो इंक्रीज है दैट मैटर्स। देखो 10 से 18, 24, 28, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 8, 6 and 4, so it increases at falling rate, then 4 and 4, it increases at constant rate and then it increases at increasing rate। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इनिशियली इंक्रीज होगा फॉलिंग रेट, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एंड इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इसको आप अगर डिवाइड करते हो आउटपुट के साथ, आपको मिलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, TVC डिवाइड बाय Q। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसका वर्टिकल टेबल जो उसको ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखिए फॉल हो रहा है देन राइज होगा। फॉल कैसे हुआ, 10, 9, 8, 7, 6.3 तक फॉल हुआ, अगेन 6.5, 7.25, ये राइज हो रहा है। तो ये देखो जब पहले फॉल हो रहा है फिर राइज हो रहा है, तो कर्व उसका कैसा बनेगा, कर्व उसका जो है वो यू शेप बनता है, या फिगर 6.5 में देख सकते हो, इसका जो कर्व है वो यू शेप्ड कर्व बनता है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ओके, वो कैसा कर्व था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, बट इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस बिकॉज वो कभी जीरो नहीं होता है, एंड हियर इट इज द यू शेप कर्व, ओके। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका, 3 पॉइंट्स हियर। एज आउटपुट इंक्रीजेस, देखिए आप साथ में टेबल में भी देखते जाइए तो आपको पता चलेगा, एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल हो रहा है। देखो आउटपुट इंक्रीज हुआ 1 2 3 4 5 तक, 6 तक, तो एवरेज वेरिएबल भी है वो फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ओके। ये लॉ जो है इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न, ये सब आपको याद रखना है, ओके। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं, या आप कह सकते हो डिक्रीजिंग कॉस्ट। इनिशियली वो वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग कॉस्ट, देन इट रीचेस टू द मिनिमम, सिक्स्थ यूनिट पे वो मिनिमम पे पहुंच जाता है, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स राइजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, ओके। तो ये यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो लॉ कौन सा हुआ, याद कीजिए आप, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ओके। इफ यू रिमेंबर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चैप्टर 5 में देखा था। वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ओके, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न है, देन व्हाट यू कॉल, देन डिक्रीजिंग है, ये सब है, ओके। नाउ अभी हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उनके कर्व देखे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट। अब ये कैसे मिलेगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, सिंपल है। एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे देन यू विल गेट एवरेज कॉस्ट, ओके। सी ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड हियर। अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट पता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट पता होगा, बिकॉज उसको सिर्फ डिवाइड ही करना है क्वांटिटी के साथ, ओके। सो यू विल गेट a table and curve something like this which is here 6.6, okay। you have to go for these things, ये देखो, once you look at the things it seems कि ये easy है, but unless and until you go for the table by your own and curve आप अपने आप से draw नहीं करते हो, by that time you know ये ऐसे ही लगेगा कि आता है, but when you start writing the things in the exam it becomes difficult। so आपको ये अपने आप बिना देखे 1-2 बार आपको draw करना होगा table and curve, then only the things will be very clear, okay। so this is the table and curve for average cost। अब average cost से related थोड़ा explanation है। see in the above table average cost जो है वो 6th यूनिट तक फॉल होता है। एवरेज कोस्ट की बात है, एवरेज कोस्ट भी यू शेप ही है, वो फॉल होता है। रीजन क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों फॉल हो रहे हैं। एवरेज कोस्ट
एंड एवरेज कॉस्ट फॉल क्यों हो रहा है? रीजन अगर पूछे तो ये कहोगे आप कि फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों फॉल हो रहे हैं, तो उनका प्लस करोगे तो वो भी फॉल ही होगा, एंड वो मिनिमम हो जाता है एंड कांस्टेंट हो जाता है 7th यूनिट पे, फिर वहां से वो राइज करने लगता है एवरेज कॉस्ट, बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो स्टूडेंट्स वो फॉल ही होता रहेगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बट नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड इट इज नेवर जीरो। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो राइज हुआ ना, दैट इज वाई एवरेज कॉस्ट ऑल्सो राइज। सो एवरेज कॉस्ट का जो शेप है वो कैसा हुआ? यू शेप। इनिशियली इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, देन इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स। अब बोथ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कर्व है यू शेप है। ओके, once again both average cost and average variable cost are U shaped. Average total cost, that is average cost only. Okay, वो कैसे मिलता है? sum of average variable and average fixed cost. As producer increases output, जैसे जैसे प्रोड्यूसर है वो आउटपुट बढ़ाता जाता है, डिफरेंस जो है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वो कम होता जाता है। रीज़न क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम होता जाता है, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखें आप, इनिशियली 20,010 है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब ये पॉइंट आप ध्यान से समझिए, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल के राइट साइड रहता है। इन अदर वर्ड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम एट लोअर आउटपुट कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। इट इज बिकॉज एवरेज कॉस्ट जो है वो सम किसका है? एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो सम है। वंस अगेन लेट मी बी क्लियर विद दिस लाइन, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट जो है दैट लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल। एवरेज वेरिएबल के राइट साइड होता है ये आप कर्व में ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ये ऐसे क्यों होता है? बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ टू एवरेज फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये अनलेस एंड अनटिल मैंने कहा स्टूडेंट्स, अगर आप ये ड्रॉ नहीं करते हो तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके, ना एवरेज कॉस्ट के बारे में एक और टॉपिक है, एवरेज कॉस्ट का जो शेप है वो यू शेप कैसे है एंड क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज एवरेज कॉस्ट कहाँ से मिलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं, तो एक रीजन ये हो गया, इन दोनों को प्लस करते हैं तो जो शेप बनेगा एवरेज कॉस्ट का वो यू शेप ही है। सी द फर्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल। अब एवरेज कॉस्ट ये किसका सम है? एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, एंड दस इनिशियली जब दोनों इनिशियली फॉल होते हैं तो ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट तो देखो स्टूडेंट्स फॉल ही होता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो स्टार्ट राइजिंग, तो एवरेज कॉस्ट भी स्टार्ट राइजिंग। ओके, बिकॉज एवरेज कॉस्ट का जो राइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज फिक्स के फॉल से, तो इन दोनों का प्लस करोगे तो एवरेज कॉस्ट भी राइज होने लगेगा, इसलिए यू शेप है। दूसरा जो रीजन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखिए वो ठीक से, इनिशियली एवरेज कॉस्ट देखिए फॉल होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग कॉस्ट कह लो, दोनों एक ही है। कॉस्ट कम होता है, बेनिफिट ज्यादा होता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। या अगर आपको याद हो तो 5th चैप्टर में हमने जो कॉजेस देखे थे, कॉजेस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में, वो यहाँ अप्लाई होते हैं। ओके, उसका रीजन यहाँ पे है बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये दो चीज़ हैं, इसीलिए इनिशियली ये फॉल होता है। देन एवरेज कॉस्ट रीचेस टू द मिनिमम, मिनिमम में पहुंच जाता है बिकॉज वहाँ पे फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का जो है वो ऑप्टिमम यूज होता है। पहले कैसा यूज होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फिर कैसा यूज होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एंड देन एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग बिकॉज अब जो है वो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो रीजन ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ओके, सो दिस इज द रीजन दैट एवरेज कॉस्ट का जो शेप है वो यू शेप्ड रहता है। ओके, सो टू कॉन्सेप्ट्स वी हैव सीन हियर, one is about total cost, one is about average cost. Okay, one more concept relating to the cost here is about marginal cost. अब marginal cost क्या है? Marginal cost is the change in the total cost. See, एक additional unit आप बनाते हो, मान लो आपने 5 यूनिट बनाए हैं और कुछ cost होता है, तो आप 6 यूनिट बना दो तो cost कुछ बढ़ जाएगा, तो 5th and 6th यूनिट के बीच में जितना cost बढ़ा है ना, that will be termed as marginal cost. Let's say for example,
If you are producing 5 units, the cost is 20. If you are producing the 6th unit, cost is 24. तो marginal cost कितना हुआ? 20 and 24 के बीच का जो difference है वो, that is total cost n minus total cost n minus 1. Okay, so 24 minus 20, that is 40. Okay, so marginal cost के बारे में आप 3 what you call formulas use कर सकते हो यहाँ पे. Okay, this is 1, 2 and 3. So पहले ये है total cost n minus total cost n minus 1. The second is change in total cost, that is 24 minus 20, that is 4, and divide by change in Q, that is 1, that is again marginal cost. या marginal cost आप total variable cost से भी find out कर सकते हो, because वहाँ भी difference आपका है वो 4 ही रहेगा. Okay, once again marginal cost क्या है? अगर आप एक additional unit बनाते हो, उससे total cost में जो change आता है, that will be termed as marginal cost. ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट का एक बार टेबल देख लेते हैं. देखिए, अब टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया. ओके, एंड टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे. यहाँ आप टोटल वेरिएबल का कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी डिफरेंस लिखोगे ना, देन ऑल्सो द आंसर विल बी सेम. देखो, अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस लिखो या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लिखो, इन बोथ द केस मार्जिनल कॉस्ट में आंसर जो है वो सेम ही आता है. देयर इज नो चेंज हियर. Okay, if you write the difference of total fixed cost or total variable cost, the answer will remain same. अब marginal cost का भी जो curve है ना, that is U-shaped curve. Again the same thing will apply here. Law of variable proportion का जो concept है वो यहाँ apply होगा. तो जहाँ भी U-shape दिखे ना, it is only because of law of return to a factor or law of variable proportion. देखो, initially marginal cost है वो क्या हो रहा है? Initially it falls. इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट है वो फॉल हो रहा है. देखिए, ओके, अब उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. पहले कॉस्ट का जो कर्व फॉल होता है उसका रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग कॉस्ट. कॉस्ट कम हो रहा है इसलिए फॉल हो रहा है, या इंक्रीजिंग रिटर्न ज़्यादा मिल रही है इसलिए कम हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. और फिर बी टू सी में अगर आप देखो तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो आप कह सकते हो इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न बी टू सी में. देन मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है इट राइसेस फ्रॉम पॉइंट सी टू एफ, बिकॉज वहाँ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का ठीक से यूज नहीं हो रहा है. दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट. ओके, दैट इज वाई द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड. ओके, सो 3 कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन हियर एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं. सी कोई भी टॉपिक यहाँ पे है, जैसे प्रोडक्शन में भी वही था, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो रिलेशंस उसके बाद जो टॉपिक में हैं वो आपको ईजी लगते हैं. ये सेम लॉजिक अप्लाई हियर. अगर यहाँ पे आपको जो कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी रिलेशन अगर आपको पूछा जाता है देन यू कैन ईजिली सॉल्व या गो फॉर दैट रिलेशंस. ओके, सो लेट्स कीप अप टू हियर. We will meet in our next session with a new topic. Till then, thank you and have a nice day.